Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet Kaur and I am here to teach you mathematics. So, today we will study about a very important topic, that is relation. Before starting our topic, we will discuss some basic terms that are used in this topic, relation. First one is set. You will often hear set A, set B, set this, set that, set of numbers, set of integers in the topic relation. So what is set? Basically, set is the collection of, the collection can be of numbers, digits, letters, etc. Means set can be the number of 10 students, collection of 10 students, collection of all the colors, collection of all the natural numbers, collection of the I can say all the cities of Punjab, etc. For example, now we have to write the set of all natural numbers. So we can write the set of natural numbers as using these brackets. We all know natural number starts from 1, 2, 3, 4, and so on. Of course, this set is infinite. Sometimes in question it is given that write the set of natural numbers from 1 to 100, 1 to 10, 1 to something 50, say 1 to 25, etc. But usually this set is infinite. So clear? Set. What is set? Set is the collection of numbers, mathematical numbers of course, digits, letters, etc. There is an example, the set of natural numbers. And the set of natural numbers is denoted by capital. Next, after set, there is another common term used in the topic relation, and that is subset. If you understand what is the term set, then you can easily understand the term subset. Now, subset is defined as a set which is a part of a larger set. किसी भी बड़े सेट, लार्जर सेट का एक सेट कुछ नंबर निकाल के साइड पर रख दिए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट. Now it will be clear for an example, like we have just written the set of natural numbers and so on up to infinity, because this set is an infinite set. Say हमने क्या किया, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से कुछ नंबर्स को अलग कर दिया. वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं. वो नंबर ऑड भी हो सकते हैं, वो नंबर इवन भी हो सकते हैं, वो नंबर 10 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन. सो हमने क्या किया, इसमें से ऑल द इवन नंबर्स, और से हमने फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को अलग कर दिया और उसे हमने नाम दे दिया एक ई. तो वो नंबर्स कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. तो मैंने क्या किया था? मैंने क्या कहा था? इस सेट में से फर्स्ट 10 इवन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इवन नंबर्स इसमें अलग कर दी. तो ये क्या था हमारा? सेट. तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या बन गया हमारा? सबसेट.
of which set of natural numbers. Clear? Next, after studying set and subset, I hope these two definitions are clear to you. Next important term which is commonly used in the topic relation is Cartesian product of sets. This is very important. Cartesian product of sets. So what is Cartesian product? Cartesian product, हमने जनरल एग्जांपल ली, एक सेट है हमारा A और दूसरा सेट है हमारा B. A में कौन है? A में क्लास 11th के 5 बच्चे हैं, स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. मोर टू बी मोर प्रिसाइज, हमने क्या किया, क्लास 11th के 5 बच्चे लिए जो हैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स. और दूसरा सेट जो बी सेट है उसमें हमने क्या लिया, जो बेसिक नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वी ऑल नो कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. दिस इज अ जनरल एग्जांपल. तो अभी आपको पता है कि नॉन मेडिकल जब कोई भी स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली वो फिजिक्स भी पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और वो मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा. सिमिलरली जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट होगा या सेकंड स्टूडेंट होगा वो भी सेम, वो फिजिक्स भी पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और वो मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा. सिमिलरली जो थर्ड नंबर है वो भी सेम, फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा. सेम अप गोज विद फोर्थ नंबर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है और फिजिक्स भी है. फिफ्थ नंबर स्टूडेंट का भी सेम है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और वो फिजिक्स भी पढ़ेगा. तो आपने देखा कि 5 नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और ये उनके सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो ये सब पढ़े. तो हमने क्या किया कि फर्स्ट नंबर को पेयर कर दिया. फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का क्या हो गया, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया और मैथमेटिक्स भी हो गया. और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम गोज विद द अनदर 4 स्टूडेंट्स. तो इन सब ने ये सारे सब्जेक्ट्स जो है कंबाइन पढ़े हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी फर्स्ट नंबर स्टूडेंट की पेयरिंग विद फिजिक्स, देन फर्स्ट नंबर स्टूडेंट की पेयरिंग विद केमिस्ट्री, देन फर्स्ट नंबर स्टूडेंट की पेयरिंग विद मैथमेटिक्स. पेयरिंग, और अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में बोलूं तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. देन सेकंड आएगा, देन थर्ड आएगा, देन फोर्थ आएगा और फिफ्थ आएगा. तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे एक बड़ा सेट A क्रॉस B जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए. नंबर 1 का लेट्स से P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया. देन सेकंड, फर्स्ट का किसके साथ बना, केमिस्ट्री के साथ, फर्स्ट का मैथ्स के साथ बना, देन सेकंड का फिजिक्स के साथ बना, सेकंड का केमिस्ट्री के साथ बना, सेकंड का मैथमेटिक्स के साथ बना, अगेन थर्ड का फिजिक्स के साथ, थर्ड का केमिस्ट्री के साथ और थर्ड का मैथमेटिक्स. सेम गोज विद फोर्थ वन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, एंड फिफ्थ वन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड. तो ये क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, ए सेट की किसके साथ, बी सेट के साथ. तो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या बनी,
What is Cartesian product of sets? It is the set of all ordered pairs from one given set to another given set. जैसे अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर बनाए किसके, ए सेट के, जिसमें कौन थे, स्टूडेंट्स थे 1 2 3 4 5, किसके साथ बनाए, अनदर सेट के जो कि था बी, जिसपे हमने कौन से मेंबर्स लिए थे, सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एक चीज और, इसमें जो ये वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आपने ऑर्डर नहीं खराब करना। जैसे फर्स्ट का हमने फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का पहले किसके साथ लिया, फिजिक्स के साथ, फिर उसका कौन किसके साथ लिया, केमिस्ट्री के साथ, और फिर उसका लिया हमने मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम अगर मैथमेटिक एग्जांपल लेंगे तो कंसीडर द सेट ए जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 and 3. Consider another set B which contains number 4, number 5 and number 6. So the Cartesian product of the set A with the set B is given by A cross B which is equal to simple फर्स्ट नंबर का 4 के साथ, फर्स्ट नंबर का 5 के साथ, फर्स्ट नंबर का 6 के साथ। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1 4 1 5 1 6। दिस इज द ऑर्डर। ऐसे नहीं है कि मैंने क्या 1 का 4 के साथ कर दिया, फिर 2 का 4 के साथ कर दिया, फिर 3 का 4 कर दिया, वो डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसमें हमें ऑर्डर को ध्यान में रखना है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। सिमिलरली 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। नेक्स्ट नंबर 3, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बना, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम वन गिवन सेट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो सेट ले लिए, ए जिसपे हमने मेंबर लिए 1 2 3 और दूसरा बी जिसमें ले लिया 4 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बना, 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 2 का 5 2 का 6 के साथ, 3 का 4 3 का 5 एंड 3 का 6 के साथ। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है तो हम अपने मेन टॉपिक पर जा सकते हैं, which is very much related to this Cartesian product of sets. So what is a relation in mathematics? Relation, it is defined as a subset of the Cartesian product of given two sets with a condition. रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विद अ कंडीशन। हमने पहले हमने सेट के बारे में भी पढ़ा। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स, मैथमेटिकल डिजिट्स, कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हमने ब्रैकेट्स में लेकर लिख लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेट्स से सबसेट, सबसेट subset is very much related to any set.
अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है, उसके हमने थोड़े से मेंबर्स को अलग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? सबसेट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने अभी किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी मच क्लियर टू यू, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर। वो आपको सेट गिवन होगा कि आपने किसका किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। अब हमने दो सेट लिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, वो एक बड़ा सेट होगा, उसमें से कुछ मेंबर्स को हमने अलग कर लिया। वो मेंबर हम अलग कैसे करेंगे? अंडर सम गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी? वो गिवन रिलेशन को डिफाइन करेगी कि आपने इस रिलेशन के अंडर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ मेंबर्स को अलग कर लिया। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से बहुत जल्दी क्लियर होगा कि हम किसके बारे में बात करें। हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये नंबर ले लिया हमने, 1 से लेके 14 तक कुछ नंबर्स ले। नेक्स्ट एक और सेट ले लिया बी, उसमें नंबर ले लिए, सेम नंबर ले लो या सेम ही सेट ले लो। हम क्या है, एक सेट का अपने आप के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन बना सकते हैं। एक दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एक और सेट हो गया, उसमें सेम ही सेट होगा जिसमें 1 से लेकर 14 है। हमें क्या करना है कि हमें रिलेशन डिफाइन करना है। वो कैसे? रिलेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल। ये कंडीशन आपको हमेशा गिवन होगी कि आपको कौन सा रिलेशन गिवन सेट्स के ऊपर डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये है, ए ले लिया 1 से लेकर 14 तक का एक सेट, उसमें हमने रिलेशन आर डिफाइन करना है। कैसे? इसमें होंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, क्योंकि हमें अभी नहीं है पता कि इसमें कौन कौन से मेंबर आ गए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, वेरिएबल से डिनोट करते हैं। क्या होना है? एक्स एंड वाई। सच दैट हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि जो y हम लेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए? 3x के बराबर आना चाहिए। Only those elements are allowed in this particular relation in which we have y is equal to 3x. अब ये भी साथ में लिखना पड़ता है कि x और y लेंगे हम कहाँ से? वो हम लेंगे हमारे गिवन सेट A से। Now we will define this relation और हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन के अंडर इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। आपको यह वर्क में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो जो एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हम सिर्फ उन्हें लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1 को x की जगह पे पुट किया, 1 into 3 तो y कितना आ गया? 3 है इसमें। सो first pair is 1 and 3. If we take x equal to 1, then we have y is equal to 3 into 1, that is 3, और 3 is a part of this given set है, क्योंकि हमने क्या किया, x and y कैसे बिलोंग करने चाहिए? a से। So इस रिलेशन के अंडर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया है 1 and 3। सेकेंड 2, x हम लेंगे 2, if x equal to 2, then y कितना आ गया? 3 into 2 is equal to 6. 6 is also part of this given setting. So second member हमारे पास कौन सा आ गया? 2 and 6. थर्ड है 4, थर्ड is 3, थर्ड is 3, x equal to 3, तो y कितना हुआ? 3 into 3 is equal to 9. So second pair इस सेट में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है? 3 and 9. Next is 4, x equal to 4, so y कितना आया? 3 into 4 is equal to 12. So अगला पेयर हमारे पास कौन सा आया? 4 into 12. Next 5, अगर हम x को लेंगे 5, so y कितना होगा? 5 into we have 3 into 5 is equal to 15, and 15 is not a part of this set.
सो वी विल रिजेक्ट दिस टर्म। आगे 6 होगा, 6 के साथ वैल्यू और बड़ी होती जाएगी क्योंकि हमारे पास ये 14 तक है, 15 के बाद तो ऑब्वियसली दोज एलिमेंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस सेट ए, देयरफॉर वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हेंस हम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। सो गिवन क्वेश्चन में ए सेट में से दिस रिलेशन आर के अकॉर्डिंग हमारे रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर कौन से हुए? 1 3, 2 6, 3 9 and 4 12. Hence this is our required relation according to this question. It should be clear. It is very simple. अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आता है तो उसमें क्या है, एक कंडीशन लग जाती है, वो कंडीशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट कर देती है रिलेशन। Okay, once again, what is relation? It is a subset of the Cartesian product of given set. Given set जो एक भी हो सकता है, उसका खुद के साथ रिलेशन भी हो सकता है, उसका another set के साथ रिलेशन भी हो सकता है। Consider another example. इसमें हम दो अलग अलग सेट्स लेंगे। The first one is A. ए को हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट बी सेट ले लिया, उसमें भी हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हमने कंडीशन लगाई रिलेशन बनाने के लिए, हमें चाहिए ऑर्डर पेयर सच दैट जो x है इट इज ए, सॉरी वी कैन राइट इट इन दिस वे, y इज अ मल्टीपल ऑफ x। अब y, पहले तो हमें x कौन से सेट से लेना होगा? पहले सेट से, और y जो है हमें किससे लेना होगा? b से। तो अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर तो हम सिंपल एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते a क्रॉस b का, जिसमें 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, सो 1 1 10 के साथ, सिमिलरली 2 का फिर 3 4 5 6 7, कैसे हम एक बड़ा सा सेट बना लेते जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होते ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। अब उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जिसमें y इज अ मल्टीपल ऑफ x हो। ठीक है, y इज अ मल्टीपल ऑफ x, ये आप खुद कर सकते हो। इसमें एक सेट लो, इसमें एक लो। अब क्या है, 2 2 का मल्टीपल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब 3 का टेबल आपको सभी को पता ऑब्वियसली, 3 6 9, 4 का देख लो 4 8, 5 का 10, 6 का तो ऑब्वियसली 6 ही होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा, इसलिए 1 के साथ करो। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। अब रिलेशन के टाइप्स, सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इफ A and B two given sets and A cross B their Cartesian product। दो सेट लिए, उनकी कार्टेशियन, आपको अभी तक सब कुछ क्लियर होगा कि दो सेट ले लिए हमने, सेट कोई भी हो सकते हैं, उसके मेंबर्स डिपेंड करता है, हमने ए क्रॉस बी उनकी क्या लिख ली? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें हमने क्या किया, एक आर रिलेशन डिफाइन कर दिया। ऐसे लिख लो, लेट अस डिफाइन
relation capital on A क्रॉस एक कोई भी एक कंडीशन लगा दी, अगर if R is equal to 5 means empty, उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो वो रिलेशन क्या बनेगा, empty relation. If A and B are two given sets and A cross B be their Cartesian product, उसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R, अगर R खाली है, उसमें कोई भी मेंबर सूटेबल नहीं है, उसमें कोई भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उस R को क्या लिख देंगे, 5 stands for empty and this relation will become empty relation. नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन जो है वो है universal relation. Again, let A and B be two given sets, दो सेट्स ले ली, उसमें let A cross B be their Cartesian product. Let capital R be a relation defined on A cross B. अगेन दो सेट ले लिए, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दी, उसमें एक कंडीशन लगा दी ताकि उसे हम रिलेशन में कन्वर्ट कर सके, अगर R is equal to A cross B, अगर A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ही मेंबर्स गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो हमारा सेट बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के. इन दैट केस दिस R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. इसमें एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स है जो इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ ही डिफाइन करते हैं. हमने क्या किया, लेट अस टेक अ क्लास ऑफ अ बॉय स्कूल, पर्टिकुलरली बॉय स्कूल की क्लास ले ली, उसमें कंसिडर करो 10th क्लास में हमने एक सेक्शन बना लिया जिसपे 25 बॉयज हैं, ठीक है. हमने सेट बना लिया, उसका एक सेट बन जाएगा जिसमें 1 2 3 4 so on up to 25 तक करके मेंबर्स होंगे और दीज आर ऑल बॉयज. तो इस सेट में हमने क्या किया, इसका खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, दैट इज वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A, बट उसमें हमने R रिलेशन अप्लाई किया जिसमें क्या होगा, X Y मेंबर्स होंगे, ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर होगा, बट इसमें हमने एक कंडीशन लगाई दैट Y इज द सिस्टर ऑफ X और XY कहाँ से आएंगे, A से. तो ये लिखना जरूरी है आपको, जब भी कोई भी रिलेशन को लिखना है तो उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. उसमें ये सबसे पहले कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो लिखना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर आएंगे, कहाँ से एलिमेंट्स आएंगे वो भी लिखना पड़ेगा, किस सेट से आ रहे हैं, A से आ रहे हैं, B से आ रहे हैं, C D एंड सो ऑन, कैसे आ रहे हैं, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा. अगेन हमारे पास क्या थे एग्जाम्पल, एक बॉय स्कूल में से हमने 10th क्लास के 25 स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है, उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, वो तो आप लिख सकते हो. आगे एक रिलेशन लगा, रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज अ सिस्टर ऑफ एक्स. ऑब्वियसली इस क्लास में सारे बॉयज हैं क्योंकि हमने एक बॉय स्कूल की एग्जाम्पल ली, तो सिस्टर कहाँ से आ गई, ठीक है. तो सिस्टर नहीं है तो ये रिलेशन को कोई भी मेंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने कैसे लेंगे, इसमें मेंबर्स कैसे आएंगे, अगर हमने फर्स्ट स्टूडेंट लिया तो सेकंड मेंबर क्या आएगा, उसकी सिस्टर आएगी, अगर इसमें सारे बॉयज हैं तो सिस्टर कहाँ से आ गई. सिमिलरली सेकंड के लिए, सेकंड भी एक बॉय, सेकंड नंबर स्टूडेंट या बोलो सेकंड नंबर रोल नंबर जो भी है, उसकी भी एक दूसरी नंबर पे क्या आएगा, सिस्टर आएगी. पर ये तो क्लास ही सारी कौन सी है, बॉयज की है,
तो बॉयज में सिस्टर कहाँ से आ गई? सो इस ऐसे करते करते अगर 25th स्टूडेंट तक भी जाएंगे वहां भी हमें उसकी सिस्टर नहीं मिलेगी, मतलब वाई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये रिलेशन आर कौन सा होगा? वाई एम्प्टी रिलेशन। इट शुड बी क्लियर। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट, अगर हमें यूनिवर्सल रिलेशन बनाना पड़े तो इसमें हम क्या है, ये कंडीशन जो है चेंज कर देंगे। आर एक्स वाई ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर। अब कंडीशन लगा दो, एक्स एंड वाई आर बोथ स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे ए से। ठीक है, एक्स एंड वाई पर ये हो गया हमारे कैसे आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, ये सॉरी ये ऐसे मेंबर्स आएंगे, ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएंगे और ये कहाँ से आएंगे। अब आप देखो, फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है, 10th में है, ऑब्वियसली मैथ्स तो पढ़ेगा ही, तो इसका अपने आप के साथ रिलेशन भी बनेगा। एंड सेकेंड 1 का 2 के साथ भी बनेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल सब्जेक्ट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो इसकी जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनेगी वो किसके बराबर आएगी, रिलेशन की। इस रिलेशन में सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स आ जाएंगे। तो ए क्रॉस ए क्या बन गया हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। I think it should be clear with this example कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, उसमें कुछ ना हो, वो खाली हो, खाली को हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, फाइल। तो दूसरा क्या होगा, यूनिवर्सल, जिसमें सारी की सारी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आ जाए। नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम रिलेशन में पढ़ते हैं, एंड this is equivalence रिलेशन। ये आपने पहले भी स्कूल में भी सुना होगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिलेशन है वो कैसे आया, रिलेशन वो कैसे बना, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग बना। ठीक है, उसके बाद हम उस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं वेदर दैट रिलेशन, दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम हर क्वेश्चन में चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो गया हमारा सिमेट्रिक, तीसरा हो गया हमारा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। किसी भी रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करती हैं देन दैट रिलेशन विल बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस अदरवाइज अगर एक भी प्रॉपर्टी जो है डिसप्रूव हो गई, वो नहीं प्रूव कर पा रहा है, वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो वो हमारा रिलेशन कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का अपने आप के साथ रिलेशन होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें जो है वो किसी भी एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन होना जरूरी है। अंडर दैट प्रॉपर्टी, अंडर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, अगर वो अपने आप के साथ रिलेटेड है देन दैट
पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है, देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो आपका नाम से ही दिख के सिमेट्री होनी चाहिए। वो कैसे? सपोज वी हैव टू एलिमेंट्स इन अ सेट 1 and 2. If 1 is related to 2 under some condition, then 2 should be related to 1. Then in that case the relation will be symmetric, otherwise no. ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी प्रूव होती है देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब बनता है? अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, देन फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड। ये गिवन होता है कि फर्स्ट सेकंड के साथ रिलेटेड है, सेकंड थर्ड के साथ रिलेटेड। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, देन इन दैट केस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। तो फर्स्ट वन क्या है? खुद के साथ रिलेटेड होना जरूरी है। एनी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इन दैट केस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर फर्स्ट वाला सेकंड के साथ रिलेटेड है, सेकंड वाला भी फर्स्ट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ये गिवन होता है कि फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ रिलेटेड है। तो दो वी हैव, इफ वी कैन प्रूव that first if first is related to second, then second should be related to first, then the relation is symmetric, and third one is transitive. If first one is related to second and second is related to third, if we can prove that the first number, your first element is related to third directly, then it is called transitive relation. अब इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होती है, वो है, इससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि ये हम इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या बात कर रहे हैं। आपने एक सेट लिया ए, इसमें ले लो सेट ऑफ ऑल द पैरेलल लाइंस। इसमें हमने क्या किया, दो पैरेलल सेट बना लिया पैरेलल लाइंस का, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, वो सारे क्या है आपस में पैरेलल लाइंस। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रूव करना है कि दिस एग्जांपल वेदर दिस रिलेशन, जो भी हम इस सेट से रिलेशन बनाएंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इसमें हमने कैपिटल आर ले लिया, कैपिटल आर में ऑब्वियसली क्या होगा, दो एलिमेंट्स होंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम अगर एक्स वाई की जगह पे ऐसे लिख लें लाइन 1 एंड लाइन 2, तो वो ज्यादा सुटेबल होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, लाइन 1 एंड लाइन 2। कैसे, वो कैसे हम लेंगे, सच दैट L1 is parallel to L1 is this sign denotes parallelism, so L1 is parallel to L2। अब L1 एंड L2 ये कहाँ से आएंगे, ये हमारे गिवन सेट से। इसमें क्या होता है कि बार बार आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशन है वो आपको वेरी क्लियर होता है कि कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, वो ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं। तो R क्या हुआ, L1 L2, L1 is parallel to L2 and L1 L2 both belongs to this set। अब हमें क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में क्या होगा कि L1 जो है खुद के साथ रिलेटेड हो। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, उसमें हम सीधा लेंगे लेट L1 belongs to A। L1 belongs to A and then it is parallel line and every line is parallel to itself। ये कंडीशन होती है ज्योमेट्री में, L1 is parallel to L1। दिस implies जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया L1 का खुद के साथ, ये हमारे किसे बिलोंग करता है, R को बिलोंग करता है तो रिलेशन बन गया, खुद के साथ बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव बन गया, हेंस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड।
नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्री। सिमेट्रिक में लेंथ L1 L2 बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो A है तो सेट ऑफ पैरेलल होगा इसका मतलब है L1 L2 बोथ आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हम ऐसे कर लें लेट L1 L2 belongs to our relation set R. If L1 L2 belongs to R, then L1 must be parallel to L2. This implies L1 is parallel to L2. Then we can write, and this is very obvious relation, that L2 is parallel to L2. ये होता ही होता है अगर हमारे पास ये दो लाइन्स हैं ये आपस में पैरेलल। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इस तरफ से देखा जाए तो L2 भी L1 के पैरेलल होता है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है L2 L1 belongs to this set of relation, hence symmetric property is satisfied. Third and the last one is transitive. उसमें क्या करेंगे let L1 L2 L3 belongs to this set A. Also L1 L2 disordered pair and L2 L3 disordered pair belongs to R, which is obvious because एक तीन लाइन से पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। अगर हम इस सेंटर की लाइन को यहाँ से हटा दें तो L1 is clearly parallel to L3. This implies L1 is parallel to L3. अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि इनका एक रिलेशन बन गया, दिस बिलोंग्स टू R। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेटेड है, सेकंड थर्ड के साथ रिलेटेड है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि फर्स्ट जो है वो डायरेक्टली थर्ड के साथ रिलेटेड है, देन द रिलेशन बिकम्स ट्रांजिटिव। दिस implies transitive relation is। अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें जो भी हमारा रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था, खुद के साथ भी रिलेटेड था। सिमेट्रिक मीन्स अगर फर्स्ट सेकंड के साथ है तो सेकंड फर्स्ट के साथ रिलेटेड है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और ट्रांजिटिव फर्स्ट सेकंड के साथ है, सेकंड थर्ड के साथ है। वी हैव प्रूव्ड फर्स्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थर्ड, देन द रिलेशन बिकम्स ट्रांजिटिव। Hence proved our given relation is इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी एट वन टाइम प्रूव नहीं होती, then relation cannot be an equivalence relation. Thank you so much.